Good morning, students. I welcome you all on the class of Managerial Economics. In the previous class, we have covered about determinants of demand, exceptions to the law of demand, elasticity of demand, and price elasticity of demand. Now, today we are starting with the next very important topic of elasticity of demand, that is types or kinds of elasticity of demand. Types or kinds. There are 5 types of elasticity of demand. First is perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand. It is denoted by the symbol infinity. Okay, PED stands for price elasticity of demand. चाहे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोले या हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोले, दोनों सेम है, वन एंड द सेम. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफिनिटी हियर? आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम. Here we are having x-axis and here we are having y-axis. Here price and here quantity demanded. So infinity means suppose our price is 5. So here your price elasticity of demand is infinite. No doubt you are increasing your number of units. Your quantity is increased from O to OQ1, OQ1 to OQ2, OQ2 to OQ3, 4, 5 and so on, like this. But your price elasticity of demand is infinite. Okay? इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्राइस को बढ़ाते हैं तो हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इनफाइनाइट हो जाती है. But this is the imaginary example. Such type of demand does not exist in the real life. So it is called as perfectly elastic demand. Second is yours second type is perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand is denoted by symbol 0. It means our price elasticity of demand is 0. So what does it mean? Look at the diagram. X-axis, y-axis. Here again price. I am writing in short form, and here it is quantity. Okay. If your price increases from rupees 5 to rupees 10, your quantity remains constant at here OQ. This is your quantity. It means you have increased the price from 5 to 10, but your demand remains constant. And this happens in case of necessities. जो भी आइटम्स आपकी बेसिक नेसेसिटीज की हैं, जो आप डेली यूज के लिए कंज्यूम करते हो, जैसे सॉल्ट हो गया, फूड ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ऑयल हो गया, उनकी जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहती है. इट मीन्स ये वो आइटम्स हैं जो आपको परचेज करनी ही करनी है, चाहे आपके पास इनकम कम है, चाहे आपकी परचेजिंग पावर कम है. तो अगर इन कमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ता है तो आपके ऊपर एज अ कंज्यूमर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता. इसलिए इस केस में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 0 या कांस्टेंट होती है. थर्ड इज योर्स यूनिट इलास्टिक डिमांड. Unit elastic demand. Unit elastic demand is denoted by symbol price elasticity of demand is equal to 1. So again I am drawing a diagram. X-axis, y-axis. Here comes price. Here comes your demand. So unit elastic means the price is increasing
your demand is also increasing. Suppose your price is OP and it decreases to OP1. Your quantity is OQ and it comes to OQ1. Okay, so what does it means? That this is increase or decrease is represented by डेल्टा P. डेल्टा मैंने बताया जो चेंज को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा आपका डेल्टा Q. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या है कि डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा Q. जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उतना ही चेंज आपकी क्वांटिटी में आ रहा है. अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कर्व की फॉर्म. इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. Rectangular hyperbola curve. You can give it a name. Suppose DD. This is your curve. Okay. So this difference, or you can say this gap is equal to this gap. जितना इतना इसमें चेंज आ रहा है प्राइस में, उतना ही आपका क्वांटिटी में चेंज आ रहा है. तो डेल्टा P is equal to डेल्टा Q. So price elasticity of demand becomes equal to 1. क्योंकि दोनों बराबर है तो वो equal to 1 हो जाता है. नेक्स्ट है आपका फोर्थ टाइप. Fourth is your greater than unit elastic demand. Now, what is greater than unit elastic? Greater than unit elastic means कि आपकी price elasticity of demand जो है it is greater than 1. So how? Again we are drawing a diagram. X-axis, Y-axis, price and demand. You can take the values also here. Suppose you are taking price and you are taking the quantity, or you can draw a freehand diagram also like this. Like this. Suppose your price is OP and it decreases to OP1 like this. Your quantity is OQ and it increases to OQ1. Delta Q and this is your delta P. So if you look at this, you join these points. This is your demand curve. Why it is greater than unit elastic? If you look at the diagram, your delta Q is greater than delta P. Means quantity demanded में change जो है ज़्यादा है as compared to change in price. So that's why we are saying that price elasticity of demand is greater than 1. Okay, this gap is less and this gap is more. Quantity is more and price is less. So it is greater than unit elastic. Now last type, इसका opposite, less than unit elastic. Fifth one, लेस देन यूनिट इलास्टिक. लेस देन यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 है. तो हम उस डायग्राम को रिवर्स कर देंगे. हाउ? हियर कम्स एक्स एक्सिस, हियर कम्स वाई एक्सिस, हियर कम्स प्राइस एंड हियर कम्स डिमांड. ओके, सो हाउ यू वुड बी ड्राइंग द डायग्राम? Like this. Okay, if you join these points, you have to join it in a proper manner from here, like this. This is your demand curve. So if you look at the diagram, the price is OP to OP1. Even though it is decreasing, your quantity is OQ to OQ1. Here you can say your price is increasing in more proportion as compared to demand. Price ज़्यादा है, delta P ज़्यादा है as compared to delta Q. Delta P is greater than delta Q. So we can say that price elasticity of demand is less than 1.
लेस देन 1 मीन्स कि हमारी क्वांटिटी कम है और हमारा प्राइस जो है वो ज़्यादा है. So this is your type or kinds of elasticity of demand. Now next is, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं जिनसे हम ये देखते हैं कि डिमांड के ऊपर किस वेरिएबल का इफेक्ट ज़्यादा है. प्राइस का इफेक्ट ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर का इफेक्ट ज़्यादा है, इनकम का इफेक्ट ज़्यादा है, या आपके रेवेन्यू का इफेक्ट ज़्यादा है. तो इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे हम कैलकुलेट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. So first is, now our topic is methods of measuring your elasticity of demand. So what are the methods which we are having for measuring your elasticity of demand? Okay, now first method is price elasticity of demand. Price elasticity of demand. Okay, this method we have covered in our previous class. You can watch my previous video on elasticity of demand. This is the part 2 of the video. So this particular topic I have already covered in the introduction to your elasticity of demand. कि elasticity of demand को ही हम price elasticity of demand बोलते हैं, जिसका मतलब क्या है, ये क्या बताता है कि quantity demanded में कितना change आ रहा है due to change in your price of commodity. Okay, what is the percentage change in quantity demanded due to percentage change in price of commodity. Symbolically हमने इसको represent किया था और एक टेबल के साथ और उसके इलस्ट्रेशन के साथ मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था. सो यू कैन वॉच माय वीडियो एंड यू कैन गेट द नॉलेज रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ सेकेंड मेथड इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. टोटल एक्सपेंडिचर, या फिर एक्सपेंडिचर को हम आउटले भी बोलते हैं, टोटल आउटले मेथड. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ मेजरिंग योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इस मेथड को फेमस इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल was the economist who initially have researched on this method, और उसने इस टेक्निक को डेवलप किया था. उसके बाद रिकार्डो और बहुत सारे जो हैं इकोनॉमिस्ट मार्केट में आए जिन्होंने रिसर्च की, लेकिन इनिशियली इस मेथड को डेवलप करने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, एल्फ्रेड मार्शल. ओके, सो उसने क्या बताया, एल्फ्रेड मार्शल ने ये बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, कि टोटल एक्सपेंडिचर के चेंज होने की वजह से प्राइस ऑफ कमोडिटी में कितना चेंज आता है. तो वो हम इस मेथड में जानेंगे कि एक्सपेंडिचर कैसे बदलता है और एक्सपेंडिचर के बदलने की वजह से प्राइस किस तरीके से मूव करता है, वो इस मेथड में एक्सप्लेन किया गया है. सो आई एम टेकिंग वन हाइपोथेटिकल टेबल विद फिगर्स. ओके, दिस इज अ इमेजिनरी टेबल क्रिएटेड विद इमेजिनरी वैल्यूज. आपके पास अगर टेबल की कोई वैल्यूज खुद की क्रिएट की हुई है या आप खुद जो है इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो विद योर इमेजिनरी वैल्यूज, तो आप उसको उस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो. आई एम टेकिंग जस्ट वन एग्जांपल फॉर यू. सपोज प्राइस, डिमांड, ओके, TE stands for your total expenditure and TE का फॉर्मूला होता है is equal to P into Q. Okay, and here it is price elasticity of demand. Now suppose your price is decreasing 9, 8, 7, 6, 5 and 4. Okay, and demand is increasing. We will reverse it. 4, 5,
6, 7, 8 and 9. It's very very easy. You can learn it also. 9, 8, 7, 6, 5, 4 and demand we will reverse it 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So what is total expenditure? P प्राइस का सिंबल हो गया P और डिमांड का सिंबल हो गया Q. अब हम टोटल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग दिस टू. Okay, P into Q. So it becomes 36, 42, 40, 42, 40, 36. Okay, if you look at the values 36, 40, 42, 42, 40, 36. Now what I am doing, look at this illustration very very carefully. Okay, I am creating the stages कि कब हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी, इक्वल टू 1 होगी और लेस देन 1 होगी. सो हाउ वी वुड बी क्रिएटिंग द स्टेजेस लाइक दिस. फर्स्ट स्टेज and 7, 6. Second stage. Okay, so this is your first stage or you can say your case 1. If you look at these two values, प्राइस जो है वो आपका डिक्रीज कर रहा है 9 से 8 और डिमांड आपकी बढ़ रही है 4 से 5. ठीक है. सो यहाँ पर क्या है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है. अब वो ग्रेटर देन 1 कैसे है मैं डायग्राम में आपको और अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा. ओके, इफ यू लुक एट हियर, यहाँ पर जो है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है दैट इज इक्वल टू 1. इक्वल टू 1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी 42 है और यहाँ पर भी 42 है, तो इट बिकम्स इक्वल टू 1. ओके, यहाँ पर बढ़ रही है और यहाँ पर इसका ऑपोजिट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. ओके, दिस टेबल is clear to you all. Okay, you can jot down this table for your reference because now we would be drawing the diagram. अब हम इससे एक डायग्राम बनाएंगे इस टेबल की हेल्प से. I am drawing a freehand diagram. मैंने आपको टेबल जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है. आप चाहें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जैसे हम बनाते हैं डायग्राम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आप चाहें तो वैल्यूज के साथ भी डायग्राम को प्लॉट कर सकते हैं या फ्री हैंड लाइक आई एम ड्राइंग आप उस तरीके से भी बना सकते हैं. फ्री हैंड का मतलब क्या है कि मैं डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ. अगर आप उनको वैल्यूज के साथ प्लॉट करेंगे तब भी डायग्राम की जो फॉर्म है, जो शेप है, वो इस तरीके से ही आएगी जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ. ओके, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्राइस और यहाँ पर नीचे आ जाएगा एक्स एक्सिस पे आपका एक्सपेंडिचर. सो व्हाट काइंड ऑफ शेप योर डायग्राम विल बी टेकिंग, इट विल बी लाइक दिस. ओके, these are your points A, B, C and D. If we look at A to B, okay, here price elasticity of demand is greater than 1. If we look from B to C, here price elasticity of demand is equal to 1. If we look from C to D, here price elasticity of demand is less than 1. Now I would be explaining you that how come it's possible कि ये कैसे होता है कि ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है या लेस देन 1 है. पहला है ग्रेटर देन 1. ओके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या आपकी डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 तब होती है जब आपका प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर कम हो रहा है. ओके, अगर प्राइस कम हो रहा है तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप. तो नेगेटिव रिलेशन की बात कर रहे हैं, इस करके इसका स्लोप जो है वो इस तरीके से. अगर प्राइस और डिमांड की भी बात करें तो दोनों में रिलेशनशिप नेगेटिव होता है. हमने लॉ ऑफ डिमांड किया था कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है एंड वाइस वर्सा. तो हमारा जो स्लोप बनता है डिमांड कर्व का वो इस तरीके से बनता है. तो यही ये बता रहा है कि देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप क्योंकि प्राइस और एक्सपेंडिचर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 क्योंकि इसकी स्लोप जो है ए बी कर्व की वो नेगेटिव है. ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम देखेंगे फ्रॉम बी टू सी.
B2C में अगर हम देखें तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 है। इक्वल टू 1 क्या क्यों है? क्योंकि जब प्राइस चेंज होता है तो एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता। ड्यू टू चेंज इन प्राइस देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, सो इट बिकम्स स्ट्रेट, इट बिकम्स पैरेलल टू y axis like this. So from B to C your price elasticity of demand is equal to 1. And if you look at from C to D ये opposite हो जाएगा। इसमें क्या है कि प्राइस और एक्सपेंडिचर जो है वो चेंज होते हैं सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है? प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, प्राइस कम होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। तो रिलेशनशिप जो है, स्लोप जो है वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी लाइक दिस। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। ओके, now next is yours. Is it clear? So this was your method of measuring the elasticity of demand through expenditure method. Now next method is point method. Third, point method. पॉइंट मेथड को हम ग्राफिक मेथड भी बोलते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राफिक मेथड। ये मेथड भी आपको एक फेमस इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। एल्फ्रेड मार्शल। ओके, सो व्हाट डज ही एक्सप्लेन? He explained this method in two parts. Okay, what are those two parts? First is when your demand curve is linear, and second is when the demand curve is not linear. Okay, when the demand curve is linear, and second is when the curve is not linear. So how we would be explaining? मैं पहला बता रही हूँ when demand curve is linear. अब इसका भी हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। Okay, you get the diagram. X-axis, y-axis. Okay, I'm drawing freehand like this. Here your price elasticity of demand is equal to 1. Here it is greater than 1. Here it is less than 1. Okay, here it is 0 because it is touching x-axis, and here it is इनफाइनाइट। तो बेसिकली इसमें हम क्या बता रहे हैं? हमने जितने भी टाइप्स किए थे, काइंड्स किए थे, वो हमने सारे इस मेथड में ले लिए। ओके, यहाँ पर आ गया आपका प्राइस और यहाँ पर आ गई आपकी क्वांटिटी। ओके, अब इसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कैसे करेंगे? कि देयर इज द फॉर्मूला विच वी यूज फॉर कैलकुलेटिंग योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला? Price elasticity of demand is equal to lower part divided by upper part. Lower part divided by upper part. Okay, I am giving the values here. This is A, this is C. You can give any value N. Okay, this is B and this is M. These are the points. So lower part means, look at the diagram. अब मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो पॉइंट ए पे कैलकुलेट करना चाहती हूँ। तो ए पॉइंट पे कैसे निकालेंगे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? ठीक है, आई एम राइटिंग हियर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट। लोअर पार्ट मीन्स न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ओके, numerator divided by denominator. So here lower part is, अब पॉइंट ए में हम कह रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इक्वल टू 1 है। कैसे होगी? देखिए यहाँ पर ए पॉइंट पे ए एन इज इक्वल टू ए एन। गैप देखिए, ए एन
है और ए एन। तो यहाँ पर हो गया लोअर पार्ट हो गया आपका ए एन के और अपर पार्ट हो गया आपका ए एन। सो वी कैन से दैट ए एन इज इक्वल टू ए एन, therefore your price elasticity of demand is equal to 1 here। ओके, सो इस तरीके से हम निकालेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका, अगर हम देखें सपोज अब मैं पॉइंट बी पे निकालना चाहती हूँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट बी। बी पे देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट। लोअर पार्ट क्या हो जाएगा, बी एन डिवाइडेड बाय बी एम। Okay, so if you look at here, Bn is greater than Bm, means lower part is greater than upper part, or numerator is greater than denominator. Therefore, price elasticity of demand is greater than 1. Okay, in the same way you can calculate the other points also. अगर आप C point पर निकालते हो तो C point पर क्या हो जाएगा, lower part हो जाएगा आपका Cn के at point C मैं लिख रही हूँ Cn, और अपर पार्ट आपका क्या हो जाएगा सी एम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सी एन कम है और सी एम ज्यादा है। ओके, सो वी कैन से दैट सी एम इज लेस देन सी एम, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, सो योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। इसी तरीके से इन्फिनिटी पे है और इसी तरीके से हमने 0 पर निकाली। Okay, so this was the concept when your demand curve is linear. Now next is when your demand curve is not linear. सेकंड है जब लीनियर नहीं होता। जब लीनियर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम कैसे निकालते हैं, सिंपल वी आर ड्रॉइंग अ डायग्राम। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हियर कम्स योर प्राइस and here comes your quantity। okay, हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे like this यहाँ पर। ओके, दिस इज योर पॉइंट ए। तो हम कैसे निकालेंगे कि पॉइंट ए पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है पॉइंट ए पे, और उसको हमने एक्सटेंड किया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ इस तरीके से, ताकि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, मैं इसको पॉइंट दे देती हूँ एन एंड एम। टेंजेंट को हमने एक्सटेंड कर दिया तो अगेन हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट। ओके, लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट। सो हियर इट कम्स ए एन, लोअर पार्ट इज योर ए एन डिवाइडेड बाय ए एन, ए एन डिवाइडेड बाय ए। This is the way you calculate when your elasticity of when your demand curve is not linear. ये था हमारा तीसरा मेथड। Okay, now the fourth method is arc method. आर्क मेथड अडॉप्ट किया जाता है ताकि आप परसेंटेज मेथड की, जो हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला मेथड किया था उसको हम परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं। ओके, उस मेथड की जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जो कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए हमने आर्क मेथड को यूज किया। ओके, सो हाउ वी कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हियर, अगेन आई एम ड्राइंग द डायग्राम। हियर कम्स योर एक्स एक्सिस, हियर कम्स योर वाई एक्सिस, प्राइस, and here you are taking the quantity। okay, like this I am drawing। okay, join these points A and B, price is decreasing and quantity is increasing। okay, so what you are doing is, ये आपने ड्रॉ कर लिया। आर्क का मतलब क्या है, अब यहाँ पर हम जो है टू सेपरेट पॉइंट्स, ये दो सेपरेट पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, यहां से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे लाइक दिस। तो यहाँ पर ये जो मैंने पोर्शन बनाया है, ये डॉटेड वाला,
इस पे जो हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं उसको हम आर्क मेथड बोलते हैं। When you are calculating the elasticity between two separate points on the demand curve, डिमांड कर्व ये आपका है ए बी, टू सेपरेट पॉइंट्स है और यहाँ से आपने आर्क ड्रॉ कर दी कैलकुलेट करने के लिए। तो जो इलास्टिसिटी है बिटवीन ए एंड बी, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, इसका फॉर्मूला है, आई एम राइटिंग द फॉर्मूला हियर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस, ओके, change in quantity demanded divided by, sorry, change in quantity demanded, okay, and down we are having average quantity demanded, average quantity demanded, quantity demanded को मैं क्या भी लिख रही हूँ, okay, average quantity demanded, average, ओके, एवरेज निकालेंगे और बड़ा यहाँ नीचे आ गया, यहाँ पर आ जाएगा चेंज इन प्राइस, ओके, एंड हियर डाउन कम्स योर एवरेज प्राइस। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग योर प्राइस इलास्टिसिटी, सॉरी, फॉर कैलकुलेटिंग योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्रू आर्क मेथड। तो आर्क मेथड से अब इसको हम सिंबॉलिकली लिखें तो ये क्या बन जाएगा, सिंबॉलिकली लिखने पर ये बन जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस Q1 माइनस Q, क्योंकि चेंज बता रहे हैं, चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय हाफ P1, एवरेज प्राइस क्या हो गया आपका, एवरेज, सॉरी, एवरेज क्वांटिटी क्या हो गया, Q1 प्लस Q, ओके। इन द सेम वे हियर चेंज इन प्राइस क्या हो गया, P1 माइनस P, ओके, एंड एवरेज प्राइस क्या हो गया, हाफ P1 प्लस P। So this is your formula which we use for calculating the elasticity of demand through arc method. Okay. ये आपका जो है इनिशियल क्वांटिटी हो गया, ये चेंज इन क्वांटिटी हो गया, ये आपका इनिशियल प्राइस हो गया और ये चेंज इन प्राइस हो गया। कि इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो फॉर्मूला है वो निकल कर आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का। ओके, नाउ लास्ट मेथड इज योर इनकम मेथड। फिफ्थ वन इज योर इनकम मेथड। इनकम मेथड जो है वो यूज किया जाता है एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू के साथ। ओके, एवरेज रेवेन्यू को हम AR से डिनोट करते हैं और मार्जिनल रेवेन्यू को हम MR से डिनोट करते हैं। ओके, रेवेन्यू क्या होता है, जो आपको इनकम होती है बाय सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, कितनी रिसीट्स आपको मिल रही हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू पर यूनिट, कि अगर आप टोटल रेवेन्यू को नंबर ऑफ यूनिट्स, जिसको हम क्यों बोलते हैं, से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज निकल आएगी। MR क्या होता है, M क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल जो है वो चेंज को बताता है कि आपके टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है बाय सेलिंग एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। अगर आप 10 यूनिट्स बेचते हो तो आपको 1000 रुपये की इनकम होती है, 1000 रुपये का रेवेन्यू होता है। अगर आप 11वां यूनिट बेचते हो 10 के बाद तो आपको कितनी जो है रेवेन्यू में इनकम होती है, 1000 से ऊपर 1100, 1200, 1300, उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं कि टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया बाय सेलिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। ओके, तो हम एवरेज रेवेन्यू को कई बार प्राइस भी बोलते हैं। आगे हम जितने भी टॉपिक्स जो है इकोनॉमिक्स में कवर करेंगे, एवरेज रेवेन्यू इज कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू प्राइस। ओके, तो अब इसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि इनकम मेथड में हम AR और MR की ही बात करेंगे। लाइक दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू कर्व and this is your marginal revenue curve. Okay, both are downward sloping.
here comes your price and here comes your quantity. Okay, when it is downward sloping, it is touching here. यहाँ पर क्या मतलब है कि MR is equal to 0. MR जो है वो is equal to 0 है, और जब यहाँ पे MR आपका 0 है तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस पॉइंट पर बन जाती है इक्वल टू 1. ओके, और यहाँ पर अगर हम देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो यहाँ पर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है. ग्रेटर देन 1 क्यों है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका MR, ये वाला MR, दिस MR इज पॉजिटिव. जब MR आपका पॉजिटिव है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ तक ग्रेटर देन 1 है. ओके, और इसके बाद जो है यहाँ पर ये वाली जो लाइन नीचे जा रही है, दिस वन, ये इतनी लाइन, कि इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पर आपका MR नेगेटिव है. दिस वन, ये MR आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है नेगेटिव है, तो ये वाला जो पोर्शन ये इक्वल टू 1 के बाद वाला, ये हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1. Okay, suppose now this is the diagram which I have drawn. Suppose I am taking one example. Suppose आपका MR पॉजिटिव है. अगर आपका MR पॉजिटिव है, ठीक है, और आपको सपोज गिवन है नेट एवरेज रेवेन्यू आपको गिवन है 4 रुपीज, ओके, और मार्जिनल रेवेन्यू आपको गिवन है 3 रुपीज. ओके, फॉर्मूला हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर आपका इनकम मेथड के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इज इक्वल टू AR डिवाइडेड बाय AR माइनस MR. दिस इज योर फॉर्मूला. ओके, सो इसमें मैं पुट करूंगी, अगर MR पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू कितना है 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस मार्जिनल रेवेन्यू कितना है 3. तो ये जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये इक्वल टू 4 आ जाएगा. तो 4 आने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 4 के बराबर है. द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 4 मीन्स दैट इट इज ग्रेटर देन 1. ये 1 से ज्यादा है. सो जब आपका ये प्रूफ भी हो गया डायग्राम में कि जब आपका MR पॉजिटिव होता है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है, और हमारी ऑलरेडी यहाँ पर 4 है. ओके, इसी तरीके से अगर आपकी MR नेगेटिव है तो आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके निकालें. और इसी तरीके से अगर आपकी MR 0 है, मार्जिनल रेवेन्यू अगर आपको यहाँ पे 0 गिवन है और आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम इस डायग्राम को भी जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं साइड बाय साइड. सो दिस इज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय इनकम मेथड. So that was all for today. Thank you, students. In the next class, I would be covering the further left out topics of elasticity of demand. Okay, that's all.